Hello everyone, welcome to my channel. In a previous video, we practically demonstrate how to delete a data from a database by using a front-end application. Now in today's session, we are showcase update operation in a database by using a front-end application. So without further delay, let's begin a today's session. So first we are going to show product page, and here some adding some code. Okay, so first here we add one attribute called span, because in a action head tag I want to be these head tag will be divided into two columns. Okay, so that is the reason here we have mentioned a call span, and the size number is 2. Okay, now the next here I am making a change in a table head tag. Okay, so similarly those code we have to return for a data. So similarly we have to return this code for the update also. So here we are making a changes. So here we mention update. Okay, and in href here we mention a new url. Okay, so firstly we set a new URL for the update operation, because it determine a data to send. That means I want to be send data with a parameter like a SID. Okay, so I want it determine the data will be sent from the client to server when we click on update anchor tag. तो जब मैं क्या करूँगा, इस एंकर टैग के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, सर्वर साइड में मीन्स मेरा जो मेन डॉट जेएस पेज है ये मेरा सर्वर साइड वाला पेज है, और ये मेरा फ्रंट एंड वाला पेज है. तो जब मैं डेटा क्या करूँगा, फ्रंट एंड से सर्वर साइड के ऊपर डेटा पास करूँगा तो ये क्या करेगा, इस यूआरएल के थ्रू पास करेगा. ओके, सो हियर वी मेंशन अ न्यू यूआरएल, जहाँ पे मैंने यूआरएल में उसका पाथ मेंशन किया अपडेट दैट एज, एंड हियर द पैरामीटर्स मीन्स पैरामीटर यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, जो क्या करेगा इस यूआरएल को सर्वर साइड में चेक करेगा कि इस यूआरएल के ऊपर मुझे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना. ओके, सो हियर वी मेकिंग अ चेंजेस इन अ show product.egs. Now here we are going to a server side means our main.js page. Now what we will do here, so here we make a, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा लॉजिक यहाँ पे अपडेट करेंगे. लॉजिक मीन्स जो यूआरएल हमने मेंशन किया उसको यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट करेंगे. सो यहाँ पे हमने लिखा है app.get. नाउ why we are using get, because if you observe here in this anchor tag here we are not mention any method attribute. So by default when we click on this update anchor tag, so by default it will call to the get method. मतलब यहाँ पे सिंपली क्या कर रहा है कि जब हम क्या कर रहे हैं, डेटा क्लाइंट साइड से सर्वर साइड पे पास करते हैं. सो बाय यूजिंग HTTP मेथड we passing this data from in the form of what, get method or post method. So in this case in an anchor tag we are not mention any method attribute, but by default it will consider as a get method. Okay, so now in this get method here we are making some changes, और यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, कोड अपडेट करेंगे. सो फर्स्टली व्हाट वी विल डू हियर विल बी मेंशन आवर यूआरएल मीन्स जो न्यू यूआरएल हमने पास किया था वो यहाँ पे अपडेट करेंगे. सो अपडेट, तो जो हमने यूआरएल यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वही यूआरएल आपको क्या करना है, गेस्ट मेथड के अंदर मेंशन करना है. देन हियर वी मेंशन अ पैरामीटर. सो हियर वी अपडेट अ वैल्यू बाय यूजिंग अ SID कॉलम. ओके, तो हम यहाँ पे क्या करने वाले, वैल्यू को अपडेट करने वाले बाय यूजिंग व्हाट, SID. ओके, देन हियर वी मेंशन अ कॉल बैक मेथड. सो यहाँ पे हम कॉल बैक मेथड यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे हमने कॉल बैक मेथड में हमने यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट यूज़ किए, रिस्पॉन्स एंड रिक्वेस्ट. ओके, सो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स. ओके, okay, now first what we will do here, firstly we
एक्सट्रैक्ट दिस SID फ्रॉम अ URL. ओके, तो हम क्या करने वाले हैं, पहले SID को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं बाय URL. तो जो URL में हमने वैल्यू पास किया था, उस URL के साथ हमने क्या किया है, SID पास किया. ओके, तो हमें क्या करना है, उस SID को एक्सट्रैक्ट करना है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वी आर यूजिंग request object. Now in this request object we are using a parameter property, and through this parameter we are calling a SID. Okay, now the next, here we calling a connection object. Okay, and through that we call query method. Now try to understand why we are using query method. So firstly हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, firstly हम डेटाबेस से वैल्यू फेच करने वाले, मतलब बाय यूजिंग अ सेलेक्ट क्वेरी हम क्या करने वाले, वैल्यू को फेच करने वाले. व्हाई? बिकॉज हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटाबेस से हम डेटा फेच करेंगे और उस डेटा को क्या करेंगे, एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, उस फॉर्म के ऊपर उस वैल्यू को सेट करेंगे. सो दैट इज़ द रीज़न हियर वी आर कॉलिंग अ सेलेक्ट क्वेरी. ओके, सो सेलेक्ट फ्रॉम product. So product is nothing but my table name. Okay, now here we mention a condition. So condition में हमने यहाँ पे mention किया SID and then placeholder. Okay, now in this placeholder we are using what, we are using a SID variable. Okay, then here I am calling a callback method. So error dot rows. ओके, तो यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट कॉल किए, एक है एरर और दूसरा है जिसका रिजल्ट सेट. मतलब जब मैं सेलेक्ट क्वेरी पास करूँगा तो वो जो क्वेरी से जो डेटा मुझे मिलेगा वो किस फॉर्म में होगा, वो होगा मुझे रिकॉर्ड के फॉर्म में, बट उसको मैं रोज़ में कन्वर्ट कर रहा हूँ. ओके, सो नाउ हियर आई एम कॉलिंग इफ. ओके, तो यहाँ पे हम कंडीशन दे रहे हैं इफ़, और इफ़ के अंदर मेंशन कर रहे हैं एरर. तो इफ़ एनी एरर कम्स इन अ क्वेरी, so it show me a error, what kind of a error we have to face in a array. Okay, else what we will do here, so in else part here I am calling again I am mention one if condition. Now in this if condition I will be check, or we can say I will be access these rows. Okay, so जो रोज़ मुझे मिल रहा है तो उसका मैं क्या कर रहा हूँ, लेंथ चेक कर रहा हूँ. ओके, कि मीन्स जो मैं क्वेरी पास कर रहा हूँ तो जो क्वेरी के थ्रू मुझे क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, और दोज रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ रोज़. तो जैसे ही मेरा रोज़ रहेगा वो क्या करेगा, उसकी लेंथ को काउंट करके मुझे बताएगा. ओके, अगर एल्स के अंदर मैंने इफ़ कंडीशन देखी, रोज़ का वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है तब क्या करना है, मुझे रिस्पॉन्स डॉट रेंडर. मतलब अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले, जैसे मैंने कहा था कि हमने ये सेलेक्ट क्वेरी इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे क्या करना है, डेटाबेस से वैल्यू फेच करना है और उस वैल्यू को मुझे क्या करना है, HTML के ऊपर सेट करना है. मतलब यहाँ पे आप देखोगे ये जो मुझे रिकॉर्ड है ये मुझे डेटाबेस से एक्सेस करना है बाय यूजिंग अ सेलेक्ट क्वेरी, एंड दोज डेटा आई वांट टू बी डिस्प्ले ऑन अ HTML पेज. ओके, मतलब जो हमने क्या किया था, फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो फील्ड बनाई थी, अभी उस फील्ड के अंदर मुझे क्या करना है, वो वैल्यूज़ को सेट करना है. ओके, सो नाउ हियर आई एम क्रिएटिंग दोज पेज. उस पेज को मैं नाम दे रहा हूँ अपडेट प्रोडक्ट. ओके, अपडेट प्रोडक्ट. देन यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा एक एरे प्रोडक्ट्स एंड उसको असाइन करूँगा रोज. ओके, फाइन. सो यहाँ पे हमने क्या किया, इट सिंपली मीन्स कि मैं क्या करूँगा, जब इस अपडेट एंकर टैग को क्लिक करूँगा तो ये क्या करेगा, ये जाएगा रिक्वेस्ट मेरा सर्वर साइड के पास. ओके, देन सर्वर साइड के ऊपर वो क्या करेगा, सर्वर साइड पे इस URL को मैच करेगा कि इस URL के साथ वो मैच हो रहा है क्या. ओके, देन यहाँ पे हमें दिख रहा है वो रिक्वेस्ट हमारी मैच हो रही है. ओके,
देन फर्स्टली मैंने यहाँ पे क्या किया, यूआरएल से जो मुझे वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी थी वो वैल्यू मैंने एक्सट्रैक्ट की है बाय यूजिंग अ पैराम ऑब्जेक्ट। ओके, देन उसके बाद हमने सेलेक्ट क्वेरी पास की, क्योंकि मुझे सेलेक्ट क्वेरी इसके लिए यूज़ करना है ताकि मैं रिकॉर्ड उस एसआईडी को यूज़ करके जो मुझे उसका रिकॉर्ड मिल रहा है, मतलब सिंपली सेइंग दैट इस एसआईडी के ऊपर जो भी मुझे रिकॉर्ड मिल रहा है वो मुझे रिकॉर्ड क्या करना है एक पेज के ऊपर। ओके, मीन्स मुझे एक फॉर्म के ऊपर उसको क्या करना है, सेट करना है। दैट इज़ द रीज़न वी कॉल अ सेलेक्ट क्वेरी। ओके, और इस सेलेक्ट क्वेरी में हमने यहाँ पे कंडीशन मेंशन किया है एसआईडी के थ्रू। तो जब ये क्वेरी पास होगा तो ये जो रिक्वेस्ट करेगा, मतलब जो भी उसका आउटपुट रहेगा वो जाएगा मुझे रोज़ में। और एरर इसके लिए हमने यूज़ किया कि ताकि हम इस क्वेरी के अंदर अगर किसी टाइप का एरर है तो वो क्या करेगा, मुझे एग्जीक्यूट करेगा। ओके, नाउ यहाँ पे हमने लेंथ काउंट किया, तो अगर इसका लेंथ 0 से ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, रिस्पॉन्स क्या करेगा, रिस्पॉन्स में ये पेज क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ओके, बिकॉज आई वॉन्ट टू बी ए सेट डेटा, मुझे क्या करना है, डायनामिक डेटा जो है वो इस पेज के ऊपर सेट करना है। दैट इज़ द रीज़न वी आर कॉलिंग हियर प्रोडक्ट्स एरे, जिसके अंदर हमने क्या किया, इस रोज वैल्यू को पास किया। ओके, सो नाउ okay, now the next what we will do here, next हम क्या करने वाले हैं, जो हमें ये पेज एग्जीक्यूट करना था वो पेज हम क्या करेंगे, इस व्यू के अंदर क्रिएट करेंगे। सो नाउ हियर वी क्लिक ऑन अ न्यू फाइल एंड हियर वी मेंशन अ पेज नेम अपडेट प्रोडक्ट डॉट EGS। ओके, सो डॉट EGS ये पेज हमारा क्या होगा, एग्जीक्यूट। नाउ दिस इज़ माई HTML पेज, मतलब ये क्या हो गया, ये क्लाइंट साइड का पेज है। ओके, सो इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, ये जो वैल्यूज़ है, मीन्स ये जो सेलेक्ट क्वेरी है, जो सेलेक्ट क्वेरी से जिसको रिकॉर्ड मिला हुआ है वो रिकॉर्ड की वैल्यू मैं क्या करूँगा, इस टैग के अंदर, मतलब इस पेज के अंदर सेट करूँगा। तो अभी उस पेज को हम कैसे सेट करते हैं वो देख लेते हैं पहले। ओके, सो बॉडी टैग, ओके, here mention a title। ओके, यहाँ पे मैंने दिया अपडेट पेज। ओके, ओके, नाउ अपडेट डेटा एंट्री फॉर्म। ओके, सो यहाँ पे मैंने एक हेडर टैग यूज़ किया है। okay, now here I am using a form tag। okay, now inside of form tag यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक एट्रीब्यूट यूज़ करने वाले एक्शन। now action means what, कि जब मैं क्या करूँगा, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो कौन से पेज के ऊपर उसको क्या करना है, रिकॉर्ड अप्लाई करना है, तो कौन से URL में जाके ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ अपडेट प्रोडक्ट करके, मतलब ये मेरा URL है। okay, then here I mention method attribute। so ये जो मेरा रिकॉर्ड करेगा वो किस फॉर्म में जाएगा, ये जाएगा मेरा पोस्ट के फॉर्म में। okay, then one more attribute here we are using encrypt type। okay, encrypt type, now here we mention a multipart। okay, ओके, सो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, वो फॉर्म को क्रिएट करने वाले हैं। सो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्टली हम EGS जो है, EGS का टेम्पलेट यहाँ पे पहले एक्सेस कर लेते हैं। तो हमारा ये फर्स्ट टेम्पलेट है EGS का। सो दिस टेम्पलेट सिंपली इंडिकेट विदाउट एग्जीक्यूटिंग और वी कैन से विदाउट आउटपुट। हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हमारे कोड को जो मतलब जो भी मेरा बिजनेस लॉजिक है, जो भी मेरे कोड है वो क्या करेंगे, यहाँ पे रिटर्न होंगे, बट ये कोई आउटपुट शो नहीं करेंगे। ओके, सो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हियर वी आर यूजिंग अ प्रोडक्ट्स ऑब्जेक्ट, दैन
for each method. Okay, and here we mention a record number. Okay, fine. Okay, so एक चेंज रह गया यहाँ पे. Okay, so here we write a dynamic content by using a EGS template. Okay, now next what we will do here, next हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक लेबल टैग क्रिएट कर रहे हैं, लेबल टैग फॉर सीरियल नंबर. ओके, तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सीरियल नंबर. ओके, देन लेबल नेम मेंशन करेंगे सीरियल नंबर. ओके, okay, then here we mention a input tag. Okay, so input tag, and here we mention a type. Type में mention करेंगे text. Okay, then mention here we use a second attribute name, और उसका attribute का नाम हम mention करेंगे SID. Okay, ओके, नाउ जैसे मैंने कहा था कि वी यूज़ अपडेट प्रोडक्ट डॉट EGS फाइल टू सेट अ वैल्यू. अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यू को सेट करें. तो वैल्यू को कैसे सेट किया जाता है, सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट एट्रीब्यूट जिसको हम कहते हैं वैल्यू. ओके, नाउ इनसाइड ऑफ दिस वैल्यू वी यूजिंग अ EGS टेम्पलेट, मतलब जो हमारा सेकेंड जो नेक्स्ट टेम्पलेट है वो हम यूज़ करने वाले हैं. So this is the EGS template which we use to write a code with the output. और जो हमने ये फर्स्ट वन यूज़ किया था to write a code without a output, और ये क्या कर रहा है कि ये हम डायनेमिक कंटेंट कोड लिख रहे हैं विथ आउटपुट. तो मुझे वैल्यू सेट करनी है, दैट इज़ द रीज़न वी आर यूजिंग व्हाट दिस टेम्पलेट. ओके, नाउ हियर वी मेंशन व्हाट, हियर वी मेंशन अ प्रोडक्ट ऑब्जेक्ट डॉट SID. ओके, तो ये क्या करेगा, जो मेरा ये रिकॉर्ड है, मतलब इस कॉलम के ऊपर जो ये रिकॉर्ड है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर सेट कर रहा है. ओके, फाइन. ओके, देन यहाँ पे मैं लिखूँगा रिक्वायर्ड, मतलब दिस इज़ अ कंपल्सरी. ओके, okay, so this is for a serial number. Okay, now the same code we return for a product number. Okay, तो इसी कोड को मैं कॉपी करता हूँ, बट जस्ट मैं यहाँ पे थोड़े चेंजेस करूँगा. ओके, सो चेंजेस में हम यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ मैं प्रोडक्ट नंबर. ओके, देन इन केस ऑफ SID here we mention a product number. Okay, and in the case of value, in case of SID here we mention a product dot
ओके ओके। सो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर, एक चीज़, प्रोडक्ट नंबर। तो यहाँ पे हमने दो इनपुट टैग्स यूज़ किए हैं जिस दोनों में हमने उसके अपडेशन किया। नाउ द नेक्स्ट जो हमारा क्या कहते हैं, नेक्स्ट जो टैग है वो है हमारा कैटेगरी, मीन्स जिसमें हम क्या करें, ड्रॉप डाउन क्रिएट किया था। ओके, सो इसका लेबल में सेम ही है, लेबल कोड सेम ही है। सो यहाँ पे कैटेगरी मेंशन करेंगे। Okay, now select tag. Okay, now here we mention a ID. So यहाँ पे हमने एक ID tag यूज़ किया, attribute यूज़ किया। Okay, then next attribute name. So name में हम मेंशन करेंगे category. Okay, fine. वन मोर थिंग, यहाँ पे और थोड़ी टैग ऐड करेंगे, आईडी फॉर प्रोडक्ट नंबर। ओके, सेम फॉर सेल्स। ओके, फाइन। Now inside of select tag, here we using a option tag. Why? Because here we have to create a list of option, मतलब हमें यहाँ पे drop down create करना है। So that is the reason we are using what option tag. Now अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, option tag के ऊपर value set करेंगे। So here we are using a option attribute. Okay. Now in this option attribute we mention a value. Okay, so यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी दैन इक्वल टू, और यहाँ पे मेंशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स। Then selected and colon, yeah, this one is a blank. Okay, and okay, fine. So what is mean by this code? So यहाँ पे हमने select tag लिखा है। Now inside of select tag we using means select tag we are using for the drop down option. Now inside of drop down option we create a list. So that is the reason we are using a option tag. So यहाँ पे हमने option tag में value mention किया electronic. Now if you observe here I am writing a code for a means a dynamic content code for the purpose of when the user selecting this option. ओके, तो इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे हमने एक तरह का कंडीशन पास किया है जिसको हम कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर के थ्रू हम कंडीशन पास करें। मीन्स दिस इज़ माय कंडीशन। नाउ दिस इट सिंपली इंडिकेट अगर ये जो एट्रीब्यूट है या ये जो ऑप्शन है सेलेक्टेड है देन इट विल बी सेट अ सेलेक्टेड वैल्यू, अदरवाइज इट विल बी अ ब्लैंक रहेगा। ओके, सो दिस इज वी क्रिएट फॉर अ इलेक्ट्रॉनिक। नाउ द सेम वी क्रिएट फॉर मोबाइल। ओके, सो मोबाइल के लिए भी हम क्या करने वाले हैं, वही कोड रिपीट करेंगे। ओके,
सो जस्ट हमें यहाँ पे अपडेशन करने किस में, ये वाला पार्ट, इसका हम कैसे करके मोबाइल, ओके, और इसकी वैल्यू मोबाइल, ओके. नाउ द नेक्स्ट वन फॉर बुक्स. तो जो हमारा नेक्स्ट लिस्टिंग आइटम है जिसका नाम क्या है, बुक्स, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको अपडेट करेंगे, ओके. एंड नाउ द लास्ट वन है, वो है क्लोथिंग. सो यहाँ पे हम चेंज करते हैं okay. So in this way we create a drop down option. Now in this drop down option we create a list and we set this list value on this and on this tag, okay. Now the next जो रहेगा हमारा नेक्स्ट जो एलिमेंट है, सो दिस एलिमेंट फॉर अ इमेज रिलेटेड, ओके. तो हमें क्या करना है, इमेज एक्सेस करना है, राइट. अगर मुझे इमेज चेंज करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उस इमेज की वैल्यू को सेट करना पड़ेगा, राइट. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगेन एक लेबल क्रिएट कर रहे हैं फॉर द इमेज पर्पस. तो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ प्रोडक्ट इमेज, ओके. प्रोडक्ट इमेज, okay. So import type attribute. Now inside of type here we mention a file, okay. Then here we mention id. So इसका id में mention करता हूँ product image, okay. Then name के केस में same product image, okay. Then one more option, one more attribute except. So ये except में हम mention करने वाले हैं. So what kind of data we have to accept, that's what saying that. So यहाँ पे हम mention करेंगे image. So, okay, image. Okay, next. So product, then dot product image, product image. Then
इसको हम क्लोज करें। ओके, सो ALT अगर इमेज नहीं, अल्टरनेटिव मैसेज के लिए कि इफ़ द इमेज इज़ नॉट फाउंड, सो कुछ मैसेज मुझे यहाँ पे क्या करना है, पास करना है। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रोडक्ट इमेज, ओके, देन विद so with 100 height 100, okay, then PR. Okay, so now here we set all the elements. Okay, now here I am creating one more element, or we can say a submit button. ओके, सो ये सबमिट बटन यहाँ पे मैं क्या करूँ, क्रिएट कर रहा हूँ। मतलब जो भी मैं क्या करूँगा, अपडेशन करूँगा, वो क्लिक होने के बाद क्या होंगे, अपडेट हो जाएंगे। ओके, तो सबमिट एंड यहाँ पे वैल्यू मेंशन कर रहा हूँ, मतलब उस बटन के ऊपर वैल्यू मेंशन कर रहा हूँ। सो उस पर मैं अपडेट, ओके ओके फाइन। सो अभी हमने यहाँ पे क्या किया, अपडेट प्रोडक्ट करके यह फॉर्म क्रिएट किया। ठीक है, सो यहाँ पे हमने फॉर्म टैग यूज़ किया। फॉर्म टैग के अंदर हमने एट्रीब्यूट्स यूज़ करे, एक्शन, देन मेथड, देन इनक्रिप्ट टाइप। सो एक्शन इट सिंपली मीन्स ये URL है, ये क्या करेगा, सर्वर साइड में इस URL को चेक करेगा, देन उस URL के अंदर जो भी ऑपरेशन है उसको क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ओके, तो जब मैं क्या करूँगा, सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, तो क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा, इस URL पे, मतलब सर्वर जो हमारा main.js फाइल है उस फाइल में जाएगा और ये इस URL को क्या करेगा, सर्च करके उसके ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। मतलब उस कोड के अंदर, मतलब उस URL के अंदर जो ऑपरेशन है, जो बिजनेस लॉजिक है, उसको परफॉर्म करेगा। दैन हियर वी मेंशन अ मेथड टैग। नाउ इनसाइड ऑफ मेथड टैग वी मेंशन अ पोस्ट वैल्यू, दैन इनक्रिप्ट टाइप। इनक्रिप्ट टाइप में हमने यहाँ पे लिखा है मल्टी पार्ट एंड फॉर्म डेटा। Now this is what attribute we are using for the when we passing a data, मतलब जब हम क्या करते हैं, सर्वर साइड पे डेटा पास कर रहे हैं, सो दोज डेटा वी हैव टू कन्वर्ट इनटू इनक्रिप्टेड फॉर्म। ओके, सो मल्टीपल डेटा के फॉर्म में रहता है, मतलब हमारा डेटा टेक्स्ट के फॉर्म में रहता है, हमारा डेटा इमेज के फॉर्म में रहता है, तो वो डेटा मुझे क्या करना है, इनक्रिप्ट टाइप करना है। ओके, सो यहाँ पे इनक्रिप्ट टाइप इज अ MIME टाइप ऑफ अ कंटेंट दैट विल बी यूज टू सबमिट अ फॉर्म to the server. Okay, now here we write a dynamic EGS template. तो हमने यहाँ पे EGS template यूज़ किया for the purpose of what, for the purpose of dynamic content I have to use in a HTML. Okay, तो यहाँ पे हमने first template यूज़ किया, then we create a elements like a serial number, product number, then category. Okay, now how to set a value, तो उस value set करने के लिए हमने यहाँ पे value attribute यूज़ किया। now inside of this value attribute here we are using a EGS template. okay, so इस template को यूज़ करके मैं क्या कर रहा हूँ, जो सर्वर साइड से वैल्यू मिल रही वो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेट कर रहा हूँ। ओके, तो इस तरह से हमने क्या किया, वैल्यू को सेट किया हुआ है। Now the next thing what we have to do, next हमें यहाँ पे एक ओके, तो यहाँ पे हमने update.js EGS मतलब हमने यहाँ पे पेज जनरेट किया। नाउ अभी हम क्या करेंगे, सर्वर साइड पे जाएंगे, इस URL के रिलेटेड कोड अपडेट करेंगे। नाउ द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू आवर सर्वर साइड पेज, मतलब फ्रंट एंड में हमने update.product.js को हमने यहाँ पे मतलब यह क्लाइंट साइड का पेज हमने यहाँ पे जनरेट किया। बट जब मैं इसके अपडेट बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, सो दिस पेज विल बी
जंप टूवर्ड्स द सर्वर साइड, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, ये डेटा एक्सेस करके सर्वर साइड के ऊपर पास करेगा। तो ये हमारा सर्वर साइड पेज है main.js। अभी हम यहाँ पे सर्वर साइड पे क्या करेंगे, हमारा बिजनेस लॉजिक लगाएंगे, मतलब हम यहाँ पे अपडेट क्वेरी पास करेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम फर्स्टली वी क्रिएट URL मैपिंग मैच करेंगे। तो जो हमने एक्शन टैग के अंदर URL मेंशन किया था वही URL हम यहाँ पे क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। सो अपडेट प्रोडक्ट। ओके, नाउ यहाँ पे हम और एक एट्रीब्यूट का यूज़ कर रहे हैं, एक चीज़ है कॉमा अपलोड डॉट image। okay, so basically this is what a code which we have to use for the to accessing a image। okay, so those images we have already mentioned in a upload folder, so that is the reason we have to use this code upload dot image। okay, then here we calling a callback method। so यहाँ पे हम लिखेंगे request object and response object। okay, okay, now so here we creating an array of what kind element we have to access। so sid, then p number means product number, then category। okay, so these element we have to we make a request to body tag, I want to be a value of these element। okay, तो रिक्वेस्ट टैग यूज़ करके हमने बॉडी टैग को एक्सेस करके जो भी ये एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू एक्सेस करके उनका एक हमने एरे क्रिएट किया। सेम फॉर प्रोडक्ट इमेज। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट इमेज का अगेन फाइल, सो रिक्वेस्ट डॉट फाइल। ओके, सो रिक्वेस्ट डॉट फाइल अगेन ये हम सेम एज अ टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ इफ एल्स कंडीशन। सो रिक्वेस्ट डॉट फाइल। ओके, तो कंडीशन दिया है रिक्वेस्ट डॉट फाइल, अगर है तो ये क्या करेगा, रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम मेंशन करेगा। ओके, अगर नहीं है तो इट विल रिटर्न नल वैल्यू। okay, now next here I am passing a query by using a connection object। तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपडेट क्वेरी पास करेंगे। ओके, सो अपडेट प्रोडक्ट, then set p number, then here mention a placeholder। okay, now same for category। okay, then placeholder comma, then product image। okay, okay, now next here we mention a condition, so that is the reason we are using a where। so where, then here we mention a sid and placeholder। okay, now next we passing variables sid, then p number comma, then category and product image। okay, and here we calling a callback function। तो यहाँ पे हम callback function कॉल कर रहे हैं error dot then result। okay, and here okay, now here we cover the
लॉजिकल पार्ट. सो यहाँ पे मेंशन करें इफ कंडीशन एंड एरर. नाउ इफ एनी एरर then console.log and show me the error. What kind of error comes in this query stack. else क्या करेगा, else console.log it show me a message on a terminal. So product update सक्सेसफुल करके ये क्या करेगा, मैसेज शो करेगा. बट I don't want only a confirmation message on a terminal, but those updation I have to be show on a client side also. मतलब मुझे client side के पेज के ऊपर भी क्या करना है, वो updates दिखाना है. So that is the reason here I am calling a select query. So हम यहाँ पे वापस से क्या करेंगे, select query पास करेंगे. Okay, so select query function, then here we mention select star from product. Okay, and callback function error use. Okay, okay, if error, अगर कोई एरर होगा तो क्या करो, उसको शो करो. इफ हैव एनी एरर एल्स क्या करूँगा मैं, एल्स में पेज को क्या करने वाला हूँ, एज अ रिस्पॉन्स रेंडर करने वाला हूँ. सो विच पेज वी हैव टू रेंडर, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पेज को रेंडर करने वाला हूँ. उस पेज का नाम रहेगा मेरा शो प्रोडक्ट. ओके, तो शो प्रोडक्ट वी हैव ऑलरेडी यूज इन ए व्हेन वी इंसर्ट डेटा एंड दोज डेटा आई वांट टू बी शो ऑन अ क्लाइंट साइड. तो वही केस मैं क्या कर रहा हूँ अपडेट के केस में, मतलब अभी पहले अपडेट क्वेरी पास होगा, देन अपडेट क्वेरी के बाद फिर सेलेक्ट क्वेरी. तो सेलेक्ट क्वेरी के थ्रू क्या करूँगा, मैं क्लाइंट साइड पे दिखाऊंगा कि हाँ कि जो अपडेशन है वो क्या हो गए हैं, सक्सेसफुली हो गया. ओके, देन यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रोडक्ट्स एंड यहाँ मेंशन रूल्स. ओके, सो I think we are complete this coding part. Now let's see the execution part. So here we are completing a coding part. Now execution part पे जाते हैं अभी. So here we write a command node space dot main dot js. Now here we server is running successfully. Okay, now here we have to see all what we say SQL operation we have to. So first we have to insert a data. So first हम data को insert करते हैं. Okay, then mention a product number, so 212. Okay, then category mobile, then select a product image and then submit. Okay, so here we have to see the insertion operation is completed. Now the next operation we have to perform update. Okay, तो ये हमने insert operation complete भी किया, then select query के थ्रू उस डेटा को हमने यहाँ पे डिस्प्ले भी किया. Now अभी हम इसको क्या करेंगे, अपडेट करेंगे. मीन्स यहाँ पे जो मैम लाइक कि यहाँ पे कैटेगरी जो वो डुप्लीकेट हो रही है, मीन्स मोबाइल है, तो यहाँ पे मैं इसको बुक में देता हूँ या फिर किसी दूसरे कैटेगरी में मेंशन कर दूँगा. तो मैं यहाँ पे इसका जो प्रोडक्ट आईडी प्रोडक्ट नंबर है वो चेंज करता हूँ. और इन द केस ऑफ मोबाइल हियर वी आर सेलेक्टिंग अ क्लोथिंग पार्ट. नाउ इमेज सेलेक्ट करेंगे एंड क्लिक ऑन ओके, देन अपडेट. ओके, सो सी यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो हमारा डेटा था जो हमने अपडेट किया हो तो वैल्यू यहाँ पे अपडेट हो गया. मीन्स लाइक अ प्रोडक्ट नेम जो यहाँ पे हमने चेंजेस किया था, कैटेगरी यहाँ पे जो चेंजेस किए थे और उसके
इमेज में हमने जो चेंजेस किए थे वो यहाँ पे अपडेट. सो दिस इज़ द वे वी हैव टू परफॉर्म अ अपडेट ऑपरेशन. ना अगर अभी मुझे इस डे का डिलीट करना है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा. मीन्स क्लिक ऑन डिलीट एंकर टैग. सो हियर वी हैव टू सीन और एंकर टैग मीन्स डिलीट ऑपरेशन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया. सो इन दिस वे वी हैव टू कंप्लीट ऑल ऑपरेशंस. मीन्स जिसको हम बोलते हैं कर्ड ऑपरेशन, जो हमने यहाँ पे कंप्लीटली दिखा है, जिसमें हमने डेटा कैसे क्रिएट किया जाता है, डेटा को कैसे रिमूव किया जाता है, डेटा को कैसे अपडेट किया जाता है, डेटा को कैसे रिट्रीव किया जाता है. सो दीज ऑल ऑपरेशन विच बिलोंग टू द सर्वर साइड. सो दोज ऑपरेशन वी हैव टू परफॉर्म बाय यूजिंग अ फ्रंट एंड एप्लीकेशन. सो हियर भी आया. तो इसके कोड जो है वो मैं आपको जो सोर्स कोड है वो अवेलेबल करके दूंगा. जो इसका जो पासवर्ड है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ. तो इसका पासवर्ड है हमारा curd123. ओके, सो दिस इज़ अ पासवर्ड of this source code. So those source code will be available on description part. Okay, thank you.